A very good morning to everyone and welcome to the Uthan session today. So today we're in the third session of the topic that we started, which is your health in your hands. And for the session today, we have Dr. Deepak Gupta who's joined us. So over to you, Om Shanti. Om Shanti. I'm just trying to see whether I can share my screen from iPad. I'm used to share from laptop, but not from iPad. Let me see if I can share screen. Share screen. Can you see that? Is it coming, the presentation? No, it is not. No, I couldn't get it. I'm not. I think I need to learn more. I need to, because I could open it on my. I didn't get it from my laptop. Let me try once more if I can get it done. I wanted to show that PPT. I don't think so. Let me try from iPad. Share screen. Let's see. Share screen without audio. Sorry. It's coming screen broadcast. Start broadcast. Yeah, is it? Can you see my screen now? Can you see the PPT? No, you can't. No, the Leave it. PPT we cannot. Yeah, I think leave it. That's it. So, good morning, everyone. Om Shanti. Once again, we'll uh, talk about an interesting topic. Top. Yeah. Where am I? Yeah. Am I audible clearly? Yes, clear. Yes, yes. So we'll talk about very interesting topic, stress and sleep. I wanted to share the PPT, but I'm not able to. But doesn't matter. Uh, I can also do. I can send to Sapna Bhen. Sapna Bhen, can you put it on the screen? Yes, sure. Yeah, You send it to me. I'm sending you. And Yeah, I'm sending you. I couldn't do it on my. Let me see if I can send to Sapna Bhen. I've sent to Sapna Bhen if she can do it. So stress and sleep, very important topic, and I believe that's one of the things which is impacting a lot of people, the sleep issue. And a lot of people think sleep issue may be because of something else, maybe because of thought, maybe because of वो आइटम तो मेरे दोपहर तक हो जाएंगे और कॉफी पोट का डंडा रिमोट है हमारे पास कॉफी पोट देख लेंगे उन्हें उठा के रोना एक रिमोट डाल के ले आएगा साथ में साथ में ले आएगा उनका कॉफी पोट दे दे बस सब लोग so when the sleep issue starts happening, people start thinking about it could be just a normal sleep issue. But a lot of times, a sleep issue is related to a thought process. A lot of times, most of the time, unless you have a physical pain or physical illness, it is mostly related to the thought process. And behind the thought process is always situations, thought process, they almost becomes like that. And that's where the point comes. What is stress? And we heard about in the last presentation when I did on the almost 2 weeks back, on the 5th of August, that stress is a physiological and psychological response to internal or external stressor. Whenever there is a stressor, what is stress? A situation. So whenever there's a situation, whether it's a working place, office, family, with friends, whatever it is, how does the body react to it? How does the body respond to it? How does the body takes care of it? And that is the thing is that if the body takes care in the right way, it becomes an adaptive response. Then it is a eustress. Then it is not a maladaptive. But if the body reacts in a maladaptive way, we get panicky, we get anxiety, we start having jittery, we start having headache, migraine, we start feeling vomiting, we start feel like going to the toilet.
Our hands start shivering, we start getting sweaty. That's a maladaptive psychological and physiological response. We start feeling, oh, kuch ho jayega, something may happen bad. My God, something will happen. I may lose my job. Oh my God, I may not be able to deliver. That is what. So that is a maladaptive physiological and psychological response. Then it becomes a distress. So there's a common one situation. That common one situation can make it either maladaptive to distress or to adaptive, which is a eustress. That is what. In simple words, in simple words, stress is how our mind and body reacts when we feel overloaded, threatened, or challenged beyond our capacity to cope. So our mind and body, mind is psychological and body is physiological, reacts when we feel overloaded, threatened, or challenged. So these are the various situations which we deal in day to day. Some situations are overloading us, some are threatening us, some are challenging us, but sometimes we have to deliver on deadlines. We are challenged, we are overloaded. Sometimes you have a financial overload. You have to fulfill certain financial deadlines. There's a pressure from the spouse, there's a pressure from the children, there's a pressure from the mother, in-laws, and we have to fulfill that. But that's the time we have to see how our mind and body reacts beyond our capacity to cope. That is what. So the way we deal with it, that's important. Next slide. So why sleep matters? So we'll try to join both of them together slowly in the next few slides and then see what all can we do in this half an hour presentation. Now, why sleep matters? Sleep is very, very important. Sleep helps in restoration and recovery. It's not that we go to the bed at 11 o'clock and we sleep till 6 o'clock. Yes, it is our pattern. रोज रात को 10:30-11 बजे बेड पे चले गए, 11 से 12:30 बजे चले गए, सुबह 6, 7, 8 बजे उठ गए. देखिए हमारी वो आदत बन गई है. लेकिन जो स्लीप है उसके बहुत सारे फायदे हैं. स्लीप के बहुत, इसलिए कहते हैं ना सोना बहुत जरूरी है. सोने से बिकॉज इट हेल्प्स इन रेस्टोरेशन एंड रिकवरी. इट रिपेयर्स द टिश्यूज एंड मसल्स. जो हमारी मसल्स होती हैं, टिश्यूज होती हैं, हम थक जाते हैं. उस दिन संडे को मेरे यहाँ फंक्शन था, मैं बहुत थक गया, मैं जाके सो गया टाइम पे. सुबह उठा, मेरी 90-80% मेरी थकान चली गई थी, थोड़ी बहुत रह गई थी, फिर मैं कल सोया, फिर और निकल गई. तो दैट्स व्हाट, दैट स्लीप हेल्प्स इन रिपेयरिंग द टिश्यूज एंड मसल्स. इट रिचार्जेस द एनर्जी स्टोर्स. हम सुबह उठते हैं, हम फ्रेश फील करते हैं. सुबह उठते में लगता है यस, नाउ वी कैन डू, वी आर फुल ऑफ एनर्जी, वी वांट टू डू इट, इट्स आवर डे, इट्स माय डे, आई कैन डू इट, नाउ आई एम रेडी. दैट्स व्हाट. So it recharges the energy and stores. So it repairs, it recharges, and the third important thing is that it supports the immune system functioning. अगर आपकी नींद अच्छी है तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी. आपकी नींद अच्छी है तो आपकी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा. तो ये सारे इंपॉर्टेंट है फॉर रेस्टोरेशन एंड रिकवरी. Now another point is about the cognitive function. If your sleep is good, then you will find your memory is good. If your sleep is good, you'll be able to remember small things. You won't have forgetfulness. That's important. If your sleep is good, you'll be able to take better decisions because you will have sharpness. आप में वो तेजी होगी, आप में वो sharpness होगी, and that will help you to take better decisions in problem solving, creativity, decision making. लेकिन अब सोए नहीं, रात को नींद पूरी नहीं आई, you'll have like a brain fog. अच्छा जी, बताता हूँ जी, देखते हैं जी, करते हैं जी, कल देख लेंगे, परसों कर लेते हैं, नहीं. But once you're alert, you're fresh, your body is recharged, your body is in a best situation, you're able to take decisions. Yes, चलो करते हैं, चलो लेते हैं, चलो आज बनाते हैं. That's what. And simultaneously, the good sleep also helps with emotional regulation. It helps to control the mood and stress response. That's what. क्योंकि हमारा मूड अच्छा रहता है, फिर हम दिन भर अच्छा मूड से रहते हैं, हमारा मूड अच्छा रहता है, हमारे कॉर्टिसोल लेवल ठीक रहते हैं, हमारा मेलेटोनिन ठीक रहता है. वो सबसे इंपॉर्टेंट है और यहीं पे इंपॉर्टेंट है. तो इट रेगुलेट्स द एपेटाइट हार्मोन्स, इट अफेक्ट्स द वेट कंट्रोल, इट सपोर्ट द हार्ट की हेल्थ को इट सपोर्ट्स, इट इंप्रूव द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म एंड ऑल लॉट ऑफ दीस थिंग्स. इट ट्रिगर्स द हार्मोन रिलीज. So you see how the good sleep is important. So you see how a good sleep can help you to deliver better and better, whether it's repairing, restoration, your memory, your
प्रॉब्लम सॉल्विंग, योर मूड, योर स्ट्रेस रिस्पॉन्स, योर एपिटाइट, योर स्लीप। और कभी आप देखेंगे जब हम सोते नहीं है, हम बिंजिंग करने लग जाते हैं। हम सोते नहीं है तो म्यूट कर लीजिए सब लोग। हम सोते नहीं है तो रात को 12-1 बजे उठेंगे तो खाने लग जाएंगे, हम बिंज करने लग जाएंगे। लाओ जी लाओ, कुछ लाओ, खा लेते हैं, मिठाई खा ली, टेबल पे पड़ी है वो खा ली, दैट्स व्हाट। तो इसीलिए अच्छी नींद, टाइम पे जो नींद होती है, इट सपोर्ट्स, इट रेगुलेट्स द एपिटाइट, वेट कंट्रोल, योर हार्ट हेल्थ, दैट्स इंपॉर्टेंट। इसलिए जो कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं वो कहते हैं कि लेट नाइट खाना नहीं खाना चाहिए, लेट नाइट खाना मत खाओ, टाइम पे सो, ताकि आपका हार्ट हेल्दी रहे। तो ये सारी बातें हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म सब चीजों में हेल्प करती है। नेक्स्ट स्लाइड। तो अब उल्टा सवाल, हाउ स्ट्रेस अफेक्ट द स्लीप। तो अब हम बात करेंगे कि इंपैक्ट कैसे एक दूसरे के ऊपर। ये बहुत विशियस साइकिल है, स्ट्रेस का स्लीप के ऊपर, स्लीप का स्ट्रेस के ऊपर। तो ये सारा ये इंपैक्ट है एक दूसरे के ऊपर जो आता है। ये जो सारा इंपैक्ट विशियस साइकिल है, स्ट्रेस की स्लीप के ऊपर, स्लीप की स्ट्रेस के ऊपर। कोई चूहा है, कोई बिल्ली है, कोई बिल्ली है, चूहा चलता रहता है। 1 सेकेंड। तो when we are stressed, the body stays in alert mode. तुम्हारी जब बॉडी स्ट्रेस होती है, हमारे जो कॉर्टिसोल है, एड्रेनलिन, जो लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे, वो बढ़ जाते हैं। तो हम बिल्कुल ऐसे रहते हैं, अलर्ट स्टेट पे, हाइपर विजिलेंट स्टेट जिसे कहते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जब हम 11 बजे 10:30 बजे सोने जाते हैं, 10 बजे, तो सारी स्ट्रेस की सारी बातें आ रही होती हैं। वो इसलिए नहीं आ रही होती सिर्फ उसकी बातों की वजह से, वो इसलिए भी ये होता है कि वो स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी अलर्ट मोड पे चली जाती है, हमारा कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन बढ़ा हुआ होता है। तो फिर हम कैसे सोएंगे? एब्सोल्युटली। हम T20 के मोड में और हम टेस्ट मैच खेलना चाहते हैं, इम्पॉसिबल। हमारे को अपने आप को शांत करना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम सो नहीं पाते। दिस मेक्स इट हार्डर टू फॉल asleep, stay asleep और रीच डीप रेस्टोरेटिव स्लीप। तो इसीलिए तो और क्या होता है, वो बार बार वो थॉट्स आ रहे होते हैं, वही बातें बार बार आ रही होती है। हम प्लानिंग पे प्लानिंग कर रहे होते हैं, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, इसको सेट कर देंगे, उसको सेट कर देंगे, ये कर देंगे, अगले दिन ये फाइल पास कर देंगे, इससे मीटिंग कर लेंगे। और फिर बार बार उठ रहे होते हैं, हर एक 1-1.5 घंटे में उठ रहे। फ्रीक्वेंट वेकिंग इज हैपनिंग, शैलो स्लीप, वी गेट विविड ड्रीम्स। गेटिंग ड्रीम्स इज ओके, पीपल गेट ड्रीम, बट दे आर विविड ड्रीम्स कि ये कर लिया हमने, ये कर लिया, वो कर लिया, सब हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है। तो इसी हाउ स्ट्रेस अफेक्ट द स्लीप, ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी बॉडी को स्ट्रेस हमें इम्पैक्ट करता है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन वो हमारा जो हार्मोन है, कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, वो हमें सोने नहीं देता, वो हमें अलर्ट मोड में रखता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखते हैं स्लीप कैसे इम्पैक्ट करती है स्ट्रेस को। जब हमें नींद नहीं आती, तो जैसे हमने अभी बात करी पिछली स्लाइड में, तो हम हमारे वी आर नॉट एबल टू रेगुलेट द इमोशंस। अब उसकी वजह से क्या होता है, एक सेंटर होता है बॉडी में, ब्रेन में, एमिगडाला, द फियर इमोशन सेंटर, that becomes overactive, and because of that it's like a fire alarm system, so it keeps on firing, and because of that we become more anxious, more irritable, so the amygdala does not remain at peace. वो कहते हैं ना, rest in peace, RIP. So amygdala is not resting in peace, it is always overactive, firing. वो लगातार फायर पे फायर करता जा रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो जो फायर कर रहा है तो हम एंशियस, इरिटेबल, ऑन द एज रहते हैं। जब ऑन द एज रहते हैं तो इसलिए छोटी छोटी बातें भी, जैसे कहते हैं, राई का पहाड़ बन जाता है। एवरीडे प्रॉब्लम फील्स बिगर एंड हार्डर टू हैंडल। स्लीप लॉस रिड्यूसेस द फोकस, पेशेंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो हमारा फोकस भी नहीं रहता, हमारा सब्र भी नहीं रहता, तो सब्र, संयम, ध्यान, कंसंट्रेशन सब में चैलेंज आने लग जाते हैं। हम सही डिसीजन भी नहीं लेते। उसकी वजह से it adds to the stress at the work and the home. They are not able to deliver. तो जो हमारे बॉस होता है वो कहता है कि यार क्या बात है भाई, आज कुछ अजीब लग रहे हो आप, अब आज कुछ बात लग रही है, आज आप मीटिंग में खोए खोए लग रहे थे, you were not focused and alert, you didn't contribute to the meeting today, you didn't contribute to any planning today, you didn't contribute to any decision making today. Why, what happened? तो इसी वजह से, क्योंकि ये लैक ऑफ स्लीप होती है, उसकी वजह से हम इमोशन भी हमारे रेगुलेट नहीं हो पाते,
एमिग्डाला भी ओवर एक्टिव होता है, छोटी छोटी बातें बड़ी भी लगती हैं और हम फोकस पेशेंट द प्रॉब्लम सॉल्विंग में चले जाते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. So if you see the vicious cycle, one second. So if you see, this is the vicious cycle of stress and sleep. हमें स्ट्रेस आता है, कॉर्टिसोल एड्रेनलिन बढ़ जाता है. क्लियर? जब स्ट्रेस आया, कॉर्टिसोल एड्रेनलिन बढ़ गया, तो फिर क्या हुआ? तो स्लीप और डिस्टर्ब हो जाती है, because we go into a hyper alert state. That's what. जब हम हाइपर अलर्ट स्टेट में जाते हैं, तो फिर क्या होता है? We get poor daytime productivity, irritability. We're not able to take right decisions, which we are supposed to do it. And then because of that, what happens? We get more stressed out. When we get more stressed out, more cortisol, adrenaline, more sleep disturbed. तो ये साइकिल चलती रहती है. अब इसकी वजह से क्या हो जाता है? हमारा बर्नआउट, हमारा डिप्रेशन, हमारा एंजाइटी, पुअर फिजिकल हेल्थ. तो ये सारी चीजें हैं. हम थक जाते हैं, हम मायूस हो जाते हैं, हमें घबराहट सी पैदा हो जाती है, हमारा शरीर काम नहीं करता, हमारा शरीर हमें सहयोग नहीं देता. तो मन और शरीर दोनों के अंदर इंपैक्ट आता है. बर्नआउट, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड पुअर फिजिकल हेल्थ. So all this keeps on impacting us. So that's where all the challenge happens. So what are the signs of being in the stress sleep loop? कैसे हैं? हमें पता चले कि हम उस लूप में फंस गए हैं, स्ट्रेस और स्लीप के जो विशियस साइकिल के अंदर है, हम फंसे पड़े हैं. हमें बार बार कॉफी चाहिए होगी. लाओ जी कॉफी लाओ, कॉफी पी लेते हैं. लाओ जी ब्लैक कॉफी लाओ. तो स्ट्रॉन्ग बनाना, बढ़िया बनाना, भैया मेरे लिए आज कॉफी. कोई पूछेगा आज क्या हुआ? चीनी भी मत डालना, स्ट्रॉन्ग लेके आना. आज मेरे लिए बढ़िया सी बनाओ. ड्रिंक्स लाओ, एनर्जी ड्रिंक्स, यू नो. सो हमारे को वो चाहिए होती है टू कीप आवरसेल्फ फ्रेश एंड अवेक. फिर देन वी गेट इनटू इरिटेबिलिटी, इंपेशेंस. किसी कोलीग ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, सीनियर्स ने कुछ कह दिया, जूनियर्स ने कुछ कह दिया, हम बहुत जल्दी परेशान होते हैं. क्यों कह दिया? क्यों तंग कर रहे हो मेरे को? आप अपना काम करिए, मैं देख लूंगा ना. बार बार आ जाते हो आप मेरे पास. तो लॉट ऑफ इरिटेबिलिटी विल बी देयर इन द वर्क, लॉट ऑफ इंपेशेंस विल बी देयर. कुछ हो रहा है आज मिस्टर गुप्ता को कुछ हो रहा है पिछले 1-2 हफ्तों से, कुछ परेशान से लग रहे हैं, अजीब से लग रहे हैं, यू नो. आज पता नहीं इनकी आंखें भारी भारी लग रही हैं. आप उनके सामने नहीं बोलोगे, आप आपस में बोलोगे. उनके सामने नहीं बोल पाओगे. मे बी ही इज अ सीनियर और समबडी or having holding a good post, but yes. So that irritability and impatience at work starts coming up. Is that forgetting small tasks and details? आपको आज एक फाइल खत्म करनी थी, साइन करना, अरे मैं तो भूल ही गया, पता नहीं करा नहीं, जल्दी लाओ. आज पता नहीं क्या बात थी, याद ही नहीं रहा. So that's what. You tend to forget small tasks and details. You feel mentally exhausted, but unable to switch off. बस थक गया हूँ मैं तो यार काम कर करके, बस मुझे तो ब्रेक चाहिए. अभी तो ब्रेक लिया था पिछले हफ्ते जन्माष्टमी पे और राखी पे. कहता यार बस थक गया 2 दिन में. कल मंडे आया, मंडे इतना काम था, अब एक और ब्रेक चाहिए. बस that's what. So that is what happened. You feel mentally exhausted. You are unable to switch off. That's what. So these are some of the signs which tells you that you are getting into the stress sleep loop. You need something to charge you, something to awake you. Irritability, impatience, forgetting small task details, and feeling mentally exhausted but unable to switch off. Next. So let's break this cycle. अभी तक हमने 15-20 मिनट में बात करी कि क्या स्ट्रेस है, फिर हमने बात करी कि स्लीप क्यों जरूरी है, फिर हमने बात करी कि स्ट्रेस का स्लीप पे क्या इम्पैक्ट है और स्लीप का स्ट्रेस पे क्या इम्पैक्ट है, और फिर हमने वो साइकिल की बात करी, और फिर हमने बात करी कि कैसे उस साइकिल में जो हम फंस जाते हैं उसके क्या लक्षण है, क्या व्हाट आर द साइंस वी गेट ट्रैप्ड इनटू इट. नाउ वी गो टू द इंपॉर्टेंट पार्ट. अब करना क्या है, उसको तोड़ना कैसे है, उस पे काम कैसे करना है, उस चीज के ऊपर. यहाँ पे आते 3-4 टेक्निक्स. वन इज स्लीप हाइजीन, वन इज माइंड कामिंग टेक्निक, एंड वन इज डे टाइम स्ट्रेस मैनेजमेंट. डे टाइम में दिन ब दिन हमें कैसे अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है, हमें अपने स्लीप हाइजीन को कैसे करना है, और साथ में अपने माइंड को कैसे शांत रखना है, ताकि हमारे को स्लीपिंग पिल्स न लेनी पड़े,
ताकि हमको मेलाटोनिन ना लेना पड़े, ताकि हमारे को साइकेट्रिस्ट के पास ना जाना पड़े, उसके बिना ही हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, पहले डे टाइम स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसके बारे में हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी, काफी बातें की थी लास्ट टाइम इसके बारे में कि मैनेज योर वर्कलोड, रियलिस्टिक गोल सेटिंग, प्रायोरिटाइज द टास्क, कौन से काम कब कर रहे हैं, ताकि हमें लगे कि हाँ एवरीथिंग सिस्टमेटिक वे में, ताकि हम क्योस ना रहें, आज ये काम करना है, कल ये काम करना है, ये काम करें, ताकि हम अपने दिन को अच्छी तरह मैनेज कर सकें। थोड़ी थोड़ी देर के बाद टेक शॉर्ट ब्रेक आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ वर्क, आपने 3-4 घंटे हो गए, टेक अ स्मॉल वॉक, 2-3 घंटे हो गए, टेक अ स्मॉल वॉक, जस्ट वॉक। ये नहीं कि आप अपने जो अटेंडेंट सपोर्टर्स होते हैं, जिनको पियोन है, भैया है, भैया फाइल दे, उठे खड़े होकर खुद दे आए, आपकी बॉडी की मूवमेंट हो गई, पैरों को आप मूवमेंट कर लिया, बॉडी को स्ट्रेच कर लिया, और 2 मिनट बाद आके दोबारा बैठ गए। दैट्स व्हाट। कभी आप वॉशरूम के लिए गए, वॉशरूम गए, वॉशरूम से आते हुए आपने बॉडी को स्ट्रेच कर लिया, थोड़ी बॉडी को ऊपर नीचे कर लिया, स्ट्रेच कर लिया, फिर हो गए। या रास्ते में आते हुए एक बार विंडो के बाहर देख लिया नेचर को, इसको बोलते हैं ग्राउंडिंग टेक्निक, तो 10 सेकंड बाहर देखा, इधर देखा, वाओ, अच्छा, वाओ, वेरी गुड, थोड़ा देखा और थोड़ा अपने पैरों को ऊपर नीचे हिलाया। तो दीज आर कॉल्ड ग्राउंडिंग टेक्निक्स, या लाइट स्ट्रेचिंग और शॉर्ट वॉक्स। So these light stretching, short walks, taking short breaks after few hours of work to prevent fatigue and managing the workload. और इसके साथ में और भी दिक्कत है स्ट्रेस मैनेजमेंट में, then take supportive support from your relationships, चाहे वो वर्क में आपके कुलीग का रिलेशनशिप्स हो, चाहे घर में सब स्पाउस का हो, चाहे बच्चों के साथ हो या फ्रेंड्स का हो, उन सबको एनहांस करो। यार बहुत दिक्कत आ रही, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, 10 मिनट बातें करी उससे, अपना दिल हल्का किया, उसने कुछ रास्ता बताया, काम बन गया। तो बहुत बार जो सपोर्ट होता है रिलेशनशिप्स का, वो आपको बहुत हेल्प करता है। ये होता है कि हम सबके साथ नहीं खुल सकते, हर हमारे इंसान के कुछ 4-5 लोग होते हैं जो बहुत करीबी होते हैं, या 3-4 लोग होते हैं, 2-3 लोग होते हैं जिनसे हम ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, तो उनको हमने चाहे व्हाट्सएप कर दिया कि आप चाहते नहीं वो भी डिस्टर्ब हो, आपने उसे व्हाट्सएप कर दिया, उसने रिप्लाई कर दिया, आपको हल्का महसूस हो गया, दैट्स व्हाट, या आपने वॉइस मैसेज भेज दिया। तो इन दैट वे taking support from relationships are very very important. And और एक और चीज है, avoid caffeine after 4 o'clock, जितना हो सके 4-5 o'clock तक हमारा टी टाइम होता है, जो हमारा टी टाइम यूजुअली 4 to 5 भी होता है हर जगह, 4 to 5 या 5:30 या कई जगह 6 o'clock तक होता है, बट मोस्टली 4 से 5:30 का होता है। तो मोस्टली उसके बाद अवॉइड करें कैफीन किसी भी तरह। अगर आपका मैंने पानी पीजिए, जूस पीजिए, फ्रूट्स खाइए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, they are also very strong source of energy, dates हैं, किशमिश है, बादाम है, काजू है, nuts हैं, seeds हैं, lot of water is there, fresh lime है, without sugar, coconut water है, so all these things can help you। और green tea ले लिया अगर आपको तब भी मन कर रहा है, without sugar, so these all are important to help you, so in that way avoid, so in that way managing the stress of the day is also very very important। Next slide। Now coming to the most important part, sleep hygiene। लोग कहते नहीं मैं तो रोज टाइम पे सोता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है, टाइम पे उठता हूँ, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हम इस बिजी शेड्यूल के अंदर, इस भाग दौड़ में हमारा टाइम आगे पीछे हो ही जाता है बहुत बार, करेक्ट। तो हमें रेगुलर स्लीप एंड वेकिंग अप शेड्यूल होना चाहिए, चाहे हमारा 10:30 बजे सोए और सुबह 6 बजे उठे, या 10:30 बजे सोए सुबह 5 बजे उठे। तो एक शेड्यूल होना चाहिए आपका, ताकि बॉडी को पता चले हाँ भाई, ब्रेन को पता चले हाँ जी, आपका ब्रेन पता है यस अब सोने का वक्त आ गया। दैट्स इंपॉर्टेंट। क्रिएट अ कामिंग बेड टाइम रिचुअल और रूटीन, रीड, लिसन टू म्यूजिक, मेडिटेट और जर्नल 30-60 मिनट बिफोर स्लीप। ये सब काम की चीजें हैं। कुछ लोग किताबें पढ़ते हैं, कुछ लोग म्यूजिक सुनते हैं, बट नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग म्यूजिक, नॉट वेरी पावरफुल म्यूजिक, नॉट वेरी हैवी म्यूजिक, नॉट समथिंग रॉक, लाइट म्यूजिक, सूदिंग म्यूजिक। सम पीपल मेडिटेट, हम कराएंगे, मेरा दीदी कराएंगे आपको भी, जो हम कहते हैं हमारे ब्रह्म कुमारी में, राजयोग में, कि सोने से पहले कम से कम कुछ मिनटों के लिए, 5-10 मिनट के लिए आप मेडिटेट करिए। आप एक अपने नोट्स लिखिए, इसको हमारे उसमें बोलते हैं कि डायरी लिखिए सोने से पहले, जो भी आपके दिन भर की बातें हैं, दिन भर की जो कोई बातें आपको जहन में परेशान करती हैं, ये नहीं कि 30-60 मतलब आपको 5-10 मिनट चाहिए, आपने उनको जर्नल को लिखा, फिर आपने मेडिटेट किया और फिर आप सो गए। तो रीड, लिसन टू म्यूजिक, मेडिटेट, जर्नल, बट कोशिश करिए कि उस वक्त आप अपने फोन को
आईपैड्स को, लैपटॉप्स को यूज ना करें। कोई अर्जेंट मैसेज याद आ गया देना जरूर, वो अलग बात है, बट अवॉइड नॉट ऑन एक्टिवली ऑन दैट। ऑल्सो अवॉइड वर्क ईमेल्स और स्ट्रेसफुल कन्वर्सेशन लेट एट नाइट। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है, क्योंकि आज के टाइम में हम 24/7 वर्क काम कर रहे होते हैं, 24/7 हम पे प्रेशर होता है। हम सोच पता नहीं कब हमारा ऑफिस चलता ही रहता है। 9 बजे, अच्छा सर मैं घर जाके आपको रिप्लाई करती हूँ, अच्छा सर मैं डिनर कर रही हूँ, डिनर के बाद रिप्लाई करती हूँ, सर अभी रुक जाओ, अभी बच्चे सो जाएं उसके बाद मैं आपको रिप्लाई करती हूँ। तो वो करते करते वो ऑफिस चलता ही रहता है। तो मैं यहाँ ध्यान रखना है कि हमारे को कैसे, वो हमें इंपॉर्टेंट, बहुत अर्जेंट इंपॉर्टेंट अलग बात है, बट अदरवाइज यू हैव टू अवॉइड द वर्क ईमेल्स और स्ट्रेसफुल कन्वर्सेशन लेट एट नाइट। somebody said अनुष्का कोई can't hear। आपको तो आवाज आ रही है ना अनुष्का, पूजा? Good. So that's what. So these are the important things, that creating a calming bedtime routine, जिनको लोग बोलते हैं bedtime rituals भी। तो उसके साथ में optimizing the sleep environment, कि आपका जो कमरे का environment हो, cool हो, dark हो, quiet हो, comfortable mattress हो, pillow हो, and use the bed not for work or TV. That's very, very important. Use the bed for sleep, but not for work or TV. That's one of the important principles is there. So creating that sleep environment, bedtime rituals, regular sleeping and waking up schedule. Next slide. Light stimulants and heavy food, जो हमने अभी बात भी करी थी. Avoid caffeine, nicotine, alcohol in the evening. तो ये बहुत important बात है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए. No heavy or spicy meal right before the food, before the bed. दूसरी, खाने के बीच में सोने के बीच में 2 घंटे का गैप होना चाहिए अक्सर, खाने में और सोने में। तो अगर आपने खाना 7:30 8 बजे खाया तो फिर आप 9:30 10 बजे तक सो गए। लेकिन इस भाग दौड़ की दुनिया में, कांस्टेंट वर्किंग में बहुत बार हो नहीं पाता। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर हम थोड़ा लेट भी खा रहे हैं खाना, तो हल्का खाना खाएं, हल्का खाना खाएं, लाइट खाना खाएं, ताकि हम उसके बाद, अगर हमारा टाइम ज्यादा नहीं है तो आधे 1 घंटे बाद लाइट वॉक करके फिर हम सो जाएं। बट यूजली 2 घंटे का गैप होना चाहिए, दैट आइडियली रिकमेंडेड। और हमें 8 बजे से पहले, पुराने आयुर्वेदा में, पुराने उसमें बताते हैं कि हमारे को सनसेट से पहले खाना खाने लेना चाहिए। बट अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, तो मे बी अगर आप 8 बजे तक भी खा ले, बहुत अच्छी बात है। लिमिट द स्क्रीन टाइम यूज, ये भी एक स्लीप हाइजीन का पार्ट है। रिड्यूस द फोन, लैपटॉप और टीवी यूज एटलीस्ट 30 to 60 मिनट बिफोर स्लीप। क्योंकि जो हमारा लैपटॉप और आईफोन होता है, हमारा जो स्मार्टफोन होता है, उसमें से लाइट निकलती है, इसको बोलते हैं ब्लू लाइट। और जो ब्लू लाइट होती है वो मेलाटोनिन को सप्रेस करती है, और मेलाटोनिन बहुत जरूरी है हमारी नींद में आने के लिए। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है लाइटों को बंद करना। इन्हें लाइट बंद कर ली, मोबाइल देख रहे हैं, इन्हें लाइट बंद कर दिया, मैसेजेस कर रहे हैं, तो वो ब्लू लाइट हमारे मेलाटोनिन को सप्रेस करेगी। और जो हमने ग्रेटिट्यूड जर्नल की बात करी, सोने से पहले जिसको आप ग्रेटिट्यूड करना चाहते हो, जो भी आपके मन में गुस्सा है, नाराजगी है, जो खुंदक है, जो थॉट्स हैं, वो सब आपने लिख दिए। तो उससे क्या हुआ, आपने अपने सारे मन की बात बाहर निकाल दी। आपने थोड़ा मेडिटेट किया, आपने स्टिमुलेंट्स कम लिए, स्क्रीन यूज कम किया सोने से पहले, है ना। और आपने उससे क्या किया, और आपने एक शेड्यूल बना के रखा और कमरे में कंफर्टेबल रखा। तो उससे क्या होगा, आपकी नींद अपने आप 10:30 बजे, जो आप टाइम सोते हैं उस पर आ जाएगी, 11 बजे। इसको सबको बोलते हैं स्लीप हाइजीन। नेक्स्ट स्लाइड। और बाकी कुछ माइंड कामिंग टेक्निक्स हैं, इनके बारे में भी हमने लास्ट टाइम थोड़ा जिक्र किया था, बात किया था, जिसमें हम वी कैन राइट डाउन नेक्स्ट डे टास्क, कि अगले दिन में क्या क्या काम है वो लिख डालें, ताकि मन पे भारी ना रहे। हमने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करी जो बहुत हेल्पफुल है, इसको प्राणायाम भी बोलते हैं। चाहे आपने सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज करी, चाहे आपने कपालभाति करी, चाहे आपने अलोम विलोम किया, चाहे आपने कुंभक किया, डिपेंड करता है आप कौन सा करना चाहते हैं, चाहे आपने ओम चैंटिंग करी। तो ये सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, हमारी बॉडी को सिस्टम में लाती है। इन सब की बहुत पावर है। आइडिया में सुबह करना चाहिए, सुबह 6 6:30 7 बजे सबसे बढ़िया वक्त है ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्राणायाम करने का। उसी वक्त हमने थोड़े प्राणायाम कर लिए, उसी वक्त हमने थोड़े आसन कर लिए, वो है योगा। उसको बोलते हैं योगा। पूरा प्राणायाम और आसन का एक सम्मिश्रण, एक राइट कॉम्बिनेशन, दैट्स व्हाट द योगा इज। तो हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें।
और सबसे इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन, जो हम बहुत एम्फसाइज करते हैं। हमारा माइंड, हमारे अंदर अलग अलग वेव्स होती हैं, डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा। तो जो बीटा गामा होता है वो हमारे को उथल पुथल में रखता है, बीटा गामा, बीटा गामा, बीटा गामा। फिर अगर हम रिलैक्स होते तो अल्फा में आते हैं, अल्फा। और अल्फा से हमें जाना होता है थीटा में, सोने अच्छी नींद के लिए। तो अल्फा से थीटा में आना होता है, और वहां सब पे काम करती है मेडिटेशन। हमारे यहाँ राजयोग में, ब्रह्म कुमारी में बहुत एम्फसाइज किया जाता है कि सुबह आप मेडिटेट करो, शाम को जब घर आ जाओ तब मेडिटेट करो, और सोने से पहले फिर कुछ मिनटों के लिए मेडिटेट करो। तो आपकी बॉडी पूरी रिलैक्स रहती है, आपका मन पूरा शांत रहता है। मेडिटेशन एक बहुत बड़ी एक जरिया है जो आपके पूरे मन को, पूरे शरीर को एक कामनेस में लेके आती है। लेकिन ये नहीं कि हमने आज किया कल नहीं किया, हमें रोज मेडिटेशन करनी है। फिर थोड़ी देर में मेरा दीदी कराएंगे, कुछ मिनटों में। रोज करनी है मेडिटेशन, एक तरह का हमारा कल्चर बन जाना चाहिए, एक तरह हमारा रूटीन बन जाना चाहिए कि सुबह उठ के फ्रेश होके सबसे पहले हम मेडिटेशन करें, फिर मेडिटेशन करके हम अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज और योगा करें, और फिर अपना दिन शुरू करें। और ये हम अपने पे वक्त दें। जब हम अपने पे टाइम स्पेंड करेंगे तो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है सेल्फ इन्वेस्टमेंट। आप अपने पे इन्वेस्ट करोगे तो आगे लंबा जीतोगे, वरना कोई भी आप देखोगे इस भाग दौड़ में हम अपने पे इन्वेस्टमेंट करना भूल जाते हैं, हम अपने आप को भूल जाते हैं, हम अपने से प्यार करना भूल जाते हैं, हम अपने लिए बहुत बहुत ज्यादा शूड और रूड और रफ हो जाते हैं कि हो जाएगा, देखा जाएगा। लेकिन जब हम पहुंचते हैं, थोड़ी उम्र बढ़ती है, तो धीरे धीरे हमारी बॉडी ब्रेक डाउन होने लग जाती है। कभी हमारे जॉइंट्स, कभी हमारा पेट, कभी हमारा ब्रेन, कभी हमारी मेमोरी, कभी हमारा मूड, कभी हमारा हार्ट, कभी हमारा ब्लड प्रेशर, कभी डायबिटीज। तो ये अलग अलग कंडीशंस हैं जो हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट होती रहती है। तो मेडिटेशन इज वन ऑफ द पावरफुल टूल टू create that balance between body and mind. It's a very powerful tool to send positive signals throughout the day, throughout the body. अगर हम सुबह मेडिटेट करिए तो पूरे दिन हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी और एक कहते हैं ना, एक सकारात्मक ऊर्जा बना रहता है, और सकारात्मक ऊर्जा हमें जिताता है। क्योंकि दिन में चैलेंजेस तो आएंगे, दिन में चैलेंजेस तो क्या, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज आएंगी। जितनी आपकी बड़ी ऊंची पोजीशन उतनी बड़े चैलेंजेस आएंगे, जितनी बड़ी आपकी पोस्ट उतने फटाफट आपको बड़े बड़े डिसीजंस लेने होंगे, बड़ी बड़ी टीमों को संभालना होगा, 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, 1000 लोग संभालना होगा, और साथ में अपने आप को भी संभालना होगा। तो मेडिटेशन हमें वहां पे मदद करती है। नेक्स्ट स्लाइड। So thank you very much. Before I end, I just want to say stress and sleep are deeply connected in a vicious cycle. Quality sleep is not a luxury. It is a foundation of performance, resilience, and well-being. By practicing simple strategies, including meditation, we can break this cycle. Better sleep means better focus, better mood, and better health, and better results, and better performance at the work and in life and relationships. Next. So I end up with a quotation. A good laugh. मेरे को चाय दे दो प्लीज। A good laugh and a good long sleep. हंसना दिल खोल के, अच्छी नींद are the two best cures for यही बात कि वो उसको ना पेमेंट हो चुकी है पहले, वो मान ले 2 लाख की। साथ में मेडिटेट करते रहो, ये आपको बहुत मदद करेगा। इन वर्ड्स के साथ थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर द टाइम। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो कैन आस्क मी, एंड आफ्टर दैट मेरा मैन विल टेक यू फॉर द मेडिटेशन। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी अनुष्का जी, कोई सवाल है बॉक्स में देखिएगा। कोई सवाल नहीं है अभी तो। Anybody, any questions? If there are no questions, then thank you very much. Thank you very much for giving me this opportunity once again. And I will request Meda Didi to come over and take over.
and please start the meditation. Sapna bhai. हाँ जी, ओम शांति. She's just joining in 2 minutes. आज किसी का कोई सवाल नहीं है? पक्का? गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर, ये मेडिटेशन जो है ये कितनी देर करना चाहिए? जैसे इसमें मतलब सुबह जैसे बैठ के अगर आप सुबह रोज आधे घंटे कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शुरू में क्या होगा, आधा घंटा करना मुश्किल होगा आपके लिए, है ना? तो शुरू में आप 15 मिनट से शुरू करिए. ओके सर. 15 मिनट से शुरू करते करते धीरे धीरे इसको 1 घंटे पे लेके जा सकते हैं. बट अगर 15 मिनट से आप आधे घंटे पे भी लेकर आ गए और शाम को 10 मिनट कर लिया आपने, या सोने से पहले 5-10 मिनट कर ली, तो वो उससे भी आप देखेंगे अपने में फर्क. और जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ेगा मेडिटेशन में, तो मेधा दीदी कराएंगे आगे, मेधा दीदी, वैसे वैसे आपको करने का और मन करेगा और इच्छा होगी. आपको लगेगा कभी कभी अगर जिस दिन आप मेडिटेशन नहीं करें, आपको लगेगा कुछ जिंदगी में कुछ मिसिंग है, कुछ रह गया है. जैसे कुछ लोग, जैसे हम ब्रश नहीं करते तो कुछ लगता है, या स्नान नहीं करते, बात नहीं करते, जैसे चाय कॉफी नहीं पीते, ऐसे लगा मेडिटेशन रह गई है कुछ. तो उसी तरह मेडिटेशन का भी नशा आ जाएगा आपने, और वो नशा आपको धीरे धीरे टाइम बढ़ा देगा आपका. लेकिन सर मेडिटेशन जैसे स्टार्टिंग में करेंगे तो उसमें थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं ना, जैसे कि मतलब वहीं पे मेधा दीदी आ रही है. मेधा दीदी आपको उन सब चीजों के बारे में बताएंगी और आपको लेके चलेंगी उस सफर पे. ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच. फिर दोबारा मुलाकात करेंगे. ओम शांति. ओम शांति. ओम शांति. ओम शांति. किसी के कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, आज के टॉपिक से रिलेटेड, तो पूछ सकते हैं, फिर हम मेडिटेशन स्टार्ट करें. हाँ दीदी, मेरा एक क्वेश्चन है. प्लीज. अभी हमारे कलीग ने पूछा था कि थॉट्स बहुत आते हैं मेडिटेशन के लिए जब भी बैठते हैं, तो वो एक ऐसा एक जेनरिक क्वेश्चन है जो हर एक के लिए होगा, और मैं हर एक के लिए जानना चाहूंगा कि जो ये थॉट्स आते हैं, तो मेडिटेशन में हम लोग कोई ऐसा ब्रह्म कुमारी की तरफ से कोई ऐसा कोई मंत्र जो बोल सके, या शिव बाबा का कुछ नाम जो हम रिपीट कर सकें, क्योंकि आप पावर ऑफ रिपीटिशन पे भी आप काफी फोकस किया था आपने पहले के सेशंस में, तो इस तरह से वो रिपीट करें कि फालतू के थॉट्स ना आए, और पूरा जो कंसंट्रेशन है, ध्यान है, वो उस मंत्र या उस वर्ड पे ही रहे जो शिव बाबा से रिलेटेड है, बजाय कि हम ये सोचें कि लाइट हमारे ऊपर आ रही है या कुछ और चीज हमारे ऊपर आ रही है. उनका नाम ही हम सुमिरन करते रहे. तो नाम सुमिरन के बारे में जानना चाहूंगा, आप क्या, आपके क्या विचार है? इसमें ऐसा है कि अभी तक आपने जो सुना, तो उससे रिलेटेड हमारे पास में कुछ कमेंट्रीज है ना, मेडिटेशन कमेंट्रीज है, उसका हम यूज करते हैं. क्योंकि क्यों आते हैं थॉट्स, यदि हम उसका बेस जाने, उसकी साइकोलॉजी जाने. अब जैसे आप कोई मूवी देख रहे होते हैं, उस समय इतने थॉट्स नहीं आते हैं, वो कॉन्सेंट्रेट होता है, एकदम एकाग्र होता है. कोई डिस्टर्ब भी करता है तो कहते हैं नहीं अभी डिस्टर्ब नहीं करो, मेरे को यहाँ पे देखने दो. जब आप किसी प्रोजेक्ट में फुली डीपली एंगेज होते हैं, तो एकदम कोई दूसरा थॉट नहीं आता. लेकिन मेडिटेशन करते समय थॉट्स क्यों आते हैं अलग अलग? तो इसके पीछे हमारी साइकोलॉजी ये है, माइंड की साइकोलॉजी है कि जैसे देखो, अब मैं आपको पूछूं, आपको सबसे ज्यादा मील में क्या पसंद है? तो जस्ट एग्जांपल मान लीजिए आपका हो कि मुझे छोले भटूरे बहुत पसंद है, तो आज नाइट डिनर में आपको छोले भटूरे मिलते हैं, ठीक है. सेम आपको जो आपका बहुत पसंद है, फेवरेट है, आपको सेम ब्रेकफास्ट में भी सेम छोले भटूरे, तो आप नाइट में भी एंजॉय करोगे, ब्रेकफास्ट में भी चलो ठीक है बढ़िया है, तब भी ले लोगे. फिर सेम आपको लंच में भी, सेम आपको डिनर में भी नेक्स्ट डे, राइट. फिर डे आफ्टर टुमारो फिर आपको सेम ब्रेकफास्ट छोले भटूरे, तभी क्या होगा? हाँ, मन क्या चाहेगा? कुछ डिफरेंट. अच्छा, अब आपको सेम न्यूज क्या आप सुन सकते हो? नहीं.
सेम कॉस्ट्यूम क्या आप रोज पहन सकते हो? कहीं पे भी, शादी में, फंक्शन में, किसी भी तरह के सेलिब्रेशन में सेम कॉस्ट्यूम पहन के जाना, पहन सकते हैं? नहीं। हम हर जगह कुछ नवीनता लेके आते हैं, चेंज। सिर्फ हम जब ध्यान करने बैठते हैं ईश्वर का, तब हम उसमें सेम प्रोसेस यूज कर रहे होते हैं। अब माइंड की साइकोलॉजी है, उसको कुछ नया चाहिए। तो होता है क्या है, किसी ने हमें कोई मंत्र दिया, तो फर्स्ट डे हम उसको बहुत इजीली, बहुत लगन से करेंगे, कहीं पे भी माइंड डाइवर्ट नहीं होगा। सेकेंड डे भी हम अच्छे से करेंगे, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद माइंड डाइवर्ट होने लगता है। क्यों? क्योंकि माइंड की ये साइकोलॉजी है, उसको कुछ नया चाहिए। वो सोचता है आज कुछ नया नहीं है क्या, चलो बाहर से घूम के आते हैं। ऐसे ही आपको पता है, 4 दिन इडली छोले भटूरे खाने के बाद 5वें दिन घर में वही मिलने वाला है, तो आप क्या सोचोगे, चलो घर से या बाहर से कुछ नया खा के आते हैं, होटल से कुछ नया खा के आते हैं, या घर पे रहते हुए कुछ नया ऑर्डर कर लेते हैं। तो ये माइंड की साइकोलॉजी है, उसको कुछ नया चाहिए, कुछ नया नहीं मिलता है, इसलिए वो अलग अलग घूमता है। इसलिए फिर बहुत थॉट्स आते हैं जो हम नहीं चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास में गाइडेड कमेंट्रीज बनी हुई है, मेडिटेशन कमेंट्रीज, जो आप सुनो, उस अकॉर्डिंग चलो। और 365 कमेंट्रीज बनी हुई, रोज नया। आप YouTube पर सर्च करोगे ना, मेडिटेशन कमेंट्रीज ब्रह्मा कुमारी, रोज नया, रोज समथिंग न्यू डिफरेंट, तो उसमें आपको मजा आएगा। और जब नया मिलता है तो मन एकाग्र होता है कि आज क्या नया है। आपके घर में कोई नई रेसिपी बने, बहुत चाव से खाएंगे। तो ऐसे ही, ठीक है हरिंदर जी, ठीक है। मैम, इसमें ये आपके इस डिस्कशन से ये क्वेश्चन निकल के आता है मेरा कि ये ठीक है, ये तो हम हर चीज नई ट्राई कर रहे हैं और मन लगने लग गया, देन उसके बाद क्या? उसके बाद फिर क्या चैंटिंग या पावर ऑफ रिपीटिशन, जो हम हमारे हर सेशन में, बहुत से सेशंस में फोकस करते हैं कि पावर ऑफ रिपीटिशन, बहुत अफर्मेशंस हैं और पावर ऑफ रिपीटिशंस हैं, ये लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस लाते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आई एम ए पावरफुल, पीसफुल एंड हैप्पी एंड लकी सोल, ठीक है। मैं ये देखना चाहता हूं कि अंदर वो लाइट कैसी है, अंदर वो प्रकाश कैसा है, उसका जो सुपर पावर, सुप्रीम सोल है, उसका नाम क्या है, उसको चैंटिंग कैसे करें। हम ये बाकी जो चीजें मन लगने वाली भूल जाएं और एक बार कंसंट्रेट करके हमारे फोरहेड के बीच में हम कंसंट्रेट करें, तो हमें क्या दिखता है, क्या विजुअल होगा और उसके लिए क्या चैंटिंग रहेगी। हम तो यहाँ तो शिव बाबा को भूले बैठे हैं, हम तो ये इंस्ट्रूमेंटल पॉलिसीज पे, इस सब पे ध्यान दे रहे हैं, उसकी तरफ हमारा मन लग रहा है, हम तो बाहर की तरफ ही जा रहे हैं ना, अंदर की यात्रा तो हो ही नहीं रही। तो शिव बाबा का क्या मंत्र है, क्या नाम है, जो हमारे बड़े से बड़े जो हमारे फॉलोवर्स हैं, जो अभी इस मिशन में जो दादाजी थे जिन्होंने फॉलो किया, वो क्या मंत्र है जो हम लोग फॉलो करें और ऑटोमेटिकली सारी चीजें हो जाए। अच्छा हरिंदर जी, मुझे ऐसा लगता है अनुष्का जी, कि अभी थोड़ा टाइम हो रहा है, आई थिंक 10:45 हो गए हैं, तो ये आपका अपना पर्सनल क्वेश्चन है। हालांकि ये पूरी सीरीज, हमारा फंडामेंटल कोर्स वाला जो पूरी सीरीज हम लोग करा चुके हैं, शायद आपने वो अटेंड नहीं किया होगा। पूरा बेसिक्स क्या है, इसकी जर्नी क्या है, पूरा हम लोग करा चुके हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप पर्सनली मेरे से बात कर सकते हैं। तो ये आपका खुद का अपना क्वेश्चन है, तो ये मैं आपको पर्सनली एडवाइस कर सकती हूँ। अब क्योंकि मुझे घड़ी भी दिखाई दे रही है, नहीं, थैंक यू सो 10:40। मच। आपका नंबर मिलेगा तो पर्सनली जरूर मैं आपसे बात करूंगा। जरूर जरूर, आप अनुष्का जी से कांटेक्ट करके आप जरूर आप उसको वो कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, तो वो अच्छा होगा। ठीक थैंक है यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू। ठीक है, 1 मिनट हम साइलेंस करें, क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो गया है अनुष्का जी। ठीक है, थैंक यू। 1 मिनट साइलेंस।
Shanti. Thank you, Devi. Om Shanti. And thank you everybody else for attending the session today. Have a nice day. We will meet in the next session. Thank you. Om Shanti.